کبھی تم نے سوچا ہے کہ آسمان کے اس پار جہاں نور کی لہریں بہتی ہیں، ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب تمام فرشتے اپنی پرواز روک دیتے ہیں، نہ ان کے پر ہلتے ہیں، نہ نور حرکت کرتا ہے، نہ آسمان کی فضا میں کوئی آواز باقی رہتی ہے، صرف ایک خاموشی، ایک ایسی خاموشی جسے محسوس کیا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا۔ اور یہ خاموشی کیوں اترتی ہے؟ کیونکہ زمین پر کوئی ایک بندہ کسی ایک لمحے میں اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ آہستہ سے کہتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اور اسی لمحے آسمان پر ایک نوری آواز بلند ہوتی ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ درود حق ہے۔ اور فرشتے جن کی پرواز کبھی نہیں رکتی، اسی لمحے ٹھہر جاتے ہیں۔ آج ہم اسی راز کو کھولنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے قلب سے، وہ جگہ جہاں ہم صرف بات نہیں کرتے بلکہ دل کے اندر چھپی اس حقیقت کو تلاش کرتے ہیں جو زندگی بھی بدل دیتی ہے اور آخرت بھی۔ گزشتہ قسط جب درود بولتا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا تھا کہ درود کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ جواب لاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں جہاں درود صرف بولتا نہیں بلکہ عرش کو رکواتا ہے، فرشتوں کو تھماتا ہے، اور یہی مقام ہے درود حق۔ درود حق کوئی کتابی لفظ نہیں، کوئی مخصوص جملہ نہیں، کوئی باقاعدہ فارمولہ نہیں۔ درود حق ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کبھی کبھی زبان سے درود پڑھتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسا درود اوپر نہیں جاتا، راستے میں ہی رک جاتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھتے ہیں، اس کے وزن کو تولتے ہیں اور کہتے ہیں، اس میں نور نہیں، اسے واپس زمین پر لوٹا دو۔ لیکن درود حق، اس کا معاملہ مکمل مختلف ہے۔ درود حق کیسے بنتا ہے؟ درود حق تب پیدا ہوتا ہے جب دل کی دیوار ٹوٹ رہی ہو، جب دل رو رہا ہو، جب انسان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں اور بس ایک امید بچ جائے، یا اللہ میں کچھ نہیں لیکن تیرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں۔ جب بندہ دل کی ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں میں یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، تو اس لمحے درود لفظ نہیں رہتا، درود آہ بن جاتا ہے۔ یہی آہ آسمان کو تھما دیتی ہے۔ درود حق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اسے پڑھتا ہے، اس کے سینے پر ایک نرمی اترتی ہے۔ دل کہتا ہے، یہ درود میں نے نہیں پڑھا، یہ میرے اندر کسی اور نے پڑھا ہے۔ یہی احساس درود کو حق بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس درود کو نور میں لپیٹ کر عرش کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر درود حق فرشتوں کے لیے حکم نہیں، اجازت ہوتا ہے۔ فرشتے جیسے ہی درود حق کو محسوس کرتے ہیں، ان کے نور میں لرزش ہوتی ہے، وہ رک جاتے ہیں، پر سمیٹ لیتے ہیں، نور ٹھہر جاتا ہے، پھر ایک نورانی صدا اترتی ہے، اس درود کو ہاتھ لگا کر نہ لے جانا، یہ عاشق کے دل سے نکلا ہے، اسے سیدھا عرش تک پہنچاؤ، اور وہ عرش کی طرف ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ عام درود آسمان کے طبقوں سے گزرتا ہے، لیکن درود حق اسے اجازت ملتی ہے، سیدھا لے جاؤ، یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہے جہاں فرشتے رک جاتے ہیں اور درود آگے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس درود میں عشق ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، دعا نہیں،
आह होती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक रात में मस्जिद के पिछले हिस्से में गया। वहां एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। न कोई लफ्ज, न कोई फरियाद, बस आंसू के साथ एक ही सदा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन वसल्लिम। मैंने कहा, बेटा क्या मांग रहे हो? कहने लगा, मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस दिल चाहता है नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेता रहूं। बुजुर्ग फरमाते हैं, इसी लम्हे आसमान का दरवाजा खुलता महसूस हुआ, नूर उतरा और मैंने दिल में सुना, ये दुरूद हक है। ये वो लम्हा था जब फरिश्ते रुके थे। अगर आज, सिर्फ आज तुमने एक बार भी सच्चाई, नरमी और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लिया और कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन वसल्लिम, तो यकीन करो, मुमकिन है इसी लम्हे आसमान के फरिश्ते तुम्हारे दुरूद की वजह से रुक गए हों। यह है दुरूद हक का पहला हिस्सा। यहां से किस्त सिर्फ शुरू हुई है। असल राज अगले हिस्सा में खुलेगा कि दुरूद हक अर्श तक कैसे पहुंचता है, कौन से दुरूद रास्ते में लौटा दिए जाते हैं, कब फरिश्ते सजदे में गिर जाते हैं। दुरूद हक सिर्फ जमीन से आसमान तक नहीं जाता। यह सफर इस कायनात का सबसे पाकीज़ा सफर है। और आज मैं तुम्हें वो सफर सुनाने जा रहा हूं, वो रास्ता दिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ दुरूद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दुरूद हक के लिए खुलता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर नूर बहता है, जिसमें फरिश्ते झुकते हैं, जिसमें अर्श अपने दरवाजे खोल देता है। आओ इस सफर में दाखिल होते हैं। जब कोई बंदा मोहब्बत, आजिज़ी या टूटे हुए दिल के साथ दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन वसल्लिम, तो सबसे पहले उसके दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी जन्म लेती है। ये वो रोशनी होती है जिसका ताल्लुक नीयत से है। अगर नीयत सच्ची हो, दुरूद में एक नूर भरता है जो जमीन पर ही नहीं रहता। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद नहीं जानता कि अभी अभी उसके दिल में क्या चिंगारी रोशन हुई है। यह सफर का पहला कदम है। दुरूद हक जैसे ही सीने से निकलता है, कायनात के सबसे करीब मौजूद दो फरिश्ते उसे फौरन पहचान लेते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये दुरूद आम नहीं, इसमें दिल की रोशनी है, इसमें दर्द है, इसमें इश्क है, ये दुरूद हक है। ये कहना एक ऐलान होता है और फिर एक फरिश्ता इस दुरूद को अपने हाथ में लेता है और दूसरा हमरा चलता है। ये दोनों उसे आसमान के नीचे तक ले जाते हैं। पहला आसमान एक ऐसी जगह है जहां बेशुमार नूरानी दरवाजे हैं और हर दरवाजे की निगरानी एक मखसूस फरिश्ता करता है। जब दुरूद हक इस दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। क्यों? क्योंकि इस दुरूद की खुशबू फरिश्तों के नूर को छू लेती है। इसका वजन लफ्जों के वजन से नहीं नापा जाता, ये दिल के दर्द के वजन से नापा जाता है। अगर नीयत सच्ची हो, दरवाजा कहता है, गुजर जाओ, तुम नूर हो, तुम पाक हो, तुम दुरूद हक हो। दुरूद हक जब आसमानों के वसत से गुजरता है, एक अजीब मंजर पैदा होता है। फरिश्ते अपनी परवाज रोक देते हैं, कुछ झुक जाते हैं, कुछ सजदे में गिर जाते हैं, कुछ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सब एक ही नूरानी जुमला कहते हैं, ये दुरूद मुस्तफा के आशिक की सदा है, हमें रुक जाना चाहिए। ये वो मकाम है जहां आसमान के नूर दुरूद के रास्ते में खड़े होकर उसे सलाम करते हैं। जब दुरूद हक अर्श की सरहद तक पहुंचता है, वहां एक नूरी फसील होती है। ये वो जगह है जहां हर दुआ नहीं पहुंच सकती, हर नेकी नहीं पहुंच सकती, हर सदका नहीं पहुंच सकता, लेकिन दुरूद हक इस फसील को तोड़ नहीं देता बल्कि खुलवा देता है। कैसे? क्योंकि इस दुरूद में मोहब्बत का नूर होता है, आजिज़ी का वजन होता है
और नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत होती है। अर्श की फसील इसी लम्हे खुल जाती है। अर्श के करीब पहुंचकर एक नूरानी सदा गूंजती है, खबरदार, ये दुरूद हक है, इसे से सीधी महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाओ। इस सदा के बाद दुरूद का नूर अर्श से आगे बढ़ता है और वहां पहुंचता है जहां आम फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। सबसे बुलंद मकाम पर सबसे नर्म नूर है, वो नूर जिसका ताल्लुक खातमुन नबीयीन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वहां दुरूद के पहुंचते ही नूर में एक हल्की सी लर्जिश होती है। फिर फरिश्ते निहायत अदब से कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के एक बंदे ने आप पर दुरूद भेजा है, और वो दुरूद पेश कर दिया जाता है। ये लम्हा दुरूद हक का कमाल है। ऐसा दुरूद कभी वापस नहीं लौटता। यह है वो सफर जो सिर्फ लफ्जों से नहीं, सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकले हुए दुरूद के लिए खुलता है। अगर तुमने दिल से एक बार भी कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम, तो मुमकिन है तुम्हारा दुरूद अभी अर्श के दरवाजे पर नूर बनकर खड़ा हो, जैसे रात के सन्नाटे में किसी दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। दुरूद हक अर्श तक तो पहुंच जाता है, लेकिन सवाल यह है, जमीन पर उसका पहला असर क्या होता है? क्या नूर उतरता है? क्या दिल नर्म होता है? क्या जिंदगी बदलती है? क्या दुआ कबूल होती है, या कुछ और होता है? आज हम इस पहले मौजज़े का पर्दा हटाएंगे, जब बंदा आजिज़ी के साथ बदन के लरजते हुए लम्हे में खामोशी के अंदर दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम, तो इसका पहला असर बाहर नहीं, दिल के अंदर उतरता है। जैसे किसी ने दिल के अंधेरे में एक नन्ही सी शम्मा जला दी हो। ये रोशनी बहुत हल्की होती है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। दिल थोड़ा नर्म होता है, सीना खुलता है, लम्हा सुकून का महसूस होता है। ये वो पहली निशानी है कि दुरूद हक बन चुका है। इंसान के सीने में कभी कभी एक सख्ती होती है, गुनाहों से, नाफरमानियों से, गफलत से, दर्द से या दुनिया के बोझ से, लेकिन दुरूद हक का पहला असर ये सख्ती तोड़ देता है। एक रिवायत में आता है, दिलों की जंग आलूदगी को दुरूद की बारिश धोने लगती है। दुरूद हक दिल के आईने को साफ कर देता है, और जब दिल का पर्दा साफ हो जाए, इंसान अल्लाह को बेहतर देखने लगता है। दुनिया का हर इंसान सुकून तलाश करता है, लेकिन सुकून चीजों में नहीं मिलता, ये फैसले में नहीं मिलता, ये लोगों में नहीं मिलता। सुकून सिर्फ दो जगह मिलता है, दिल की माफी में और दुरूद हक की बरकत में। जब दुरूद हक दिल से निकलता है, सुकून दिल के गिर्द लपट जाता है। यही पहला मौजज़ा है। एक शख्स था, गुनाहों में डूबा हुआ, नाफरमानियों में गुम। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक रात वो टूट कर कहने लगा, या अल्लाह, मेरे पास कोई नेकी नहीं, मैं तेरे करीब नहीं, लेकिन मैं तेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर सकता हूं। और उसने पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम। हदीस कहती है, गुनाहगार का दुरूद नेक बंदों के दुरूद के साथ मिला दिया जाता है। पहली बार उसने कोई नेकी की थी, और वो नेकी हुआ नहीं हुई, अर्श तक गई। ये दुरूद हक था, और इसी लम्हे उसके दिल में सुकून का एक दरिया उतर गया। दुरूद हक दुआ के दरवाजे खोल देता है। जब फरिश्ते दुरूद हक को अर्श तक ले जाते हैं, तो उसके पीछे पीछे उस बंदे की दुआएं भी ऊपर उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हदीस है, दुरूद दुआ और कबूलियत के दरमियान नूरानी पर्दा बन जाता है, जो दुआ को ऊपर ले जाता है।
इसीलिए पहला असर यह होता है कि वो दुआएं जो बरसों रुकी होती हैं, उनका सफर शुरू हो जाता है। दुरूद हक जब दिल में उतरता है, इंसान के सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी बीमारी की नहीं, ये अल्लाह के नूर की होती है। सूफिया कहते हैं, दुरूद हक दिल की मुर्दा रगों में जिंदगी भर देता है। यही वजह है कि लोग दुरूद के बाद खुद को हल्का महसूस करते हैं, जैसे किसी ने दिल से बोझ हटा दिया हो। दुरूद हक इंसान की तकदीर बदल सकता है। कैसे? हर दुरूद अर्श पर एक नूर बनता है, और जब वो नूर ज्यादा हो जाता है तो इंसान की किस्मत में एक तब्दीली लिखती जाती है। कुछ लोगों को रिस्क में आसानी मिलती है, कुछ को सुकून मिलता है, कुछ को मोहब्बत मिलती है, कुछ को अल्लाह का कुर्ब मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा असर यह है, इंसान नेकी की तरफ माइल होने लगता है। यह दुरूद हक का पहला तोहफा है। दुरूद हक का पहला मोजज़ा अर्श पर नहीं, जमीन पर होता है। दिल रोशन हो जाता है, सीना नर्म हो जाता है, दुआ का रास्ता खुल जाता है और इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है। अगर आज तुमने सिर्फ एक बार भी सच्चाई के साथ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम, तो मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी का पहला मोजज़ा आज रात उतर जाए। एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसा राज जिसे जानकर इंसान कांप जाता है, दिल थर थर करने लगता है और रूह लरस जाती है। और वो राज ये है, हर दुरूद अर्श तक नहीं जाता। हां, ये पेनफुल ट्रूथ है, सच्चाई है, कायनात का कानून है। हर दुरूद कबूल नहीं होता, हर दुरूद ऊपर नहीं जाता, हर दुरूद अर्श से गुजर नहीं पाता। कुछ दुरूद रास्ते में रोक लिए जाते हैं, कुछ लुटा दिए जाते हैं, कुछ दुरूद कबूलियत से पहले ही हवा में तहलील हो जाते हैं। क्यों? क्या गलती है? इसमें कमी क्या होती है? आओ आज इस राज को समझते हैं। सबसे पहले वो दुरूद जो सिर्फ जबान से निकलता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खाली होता है। ऐसा दुरूद जब आसमान की तरफ उठता है तो फरिश्ते उसे देखकर कहते हैं, इस दुरूद में नूर नहीं, ये जबान का दुरूद है, दिल का नहीं। और फिर वो दुरूद पहले आसमान के दरवाजे से आगे नहीं जाता, वहीं रुक जाता है, वहां ही वापस लौटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह दिल की तरफ देखता है, जबान की तरफ नहीं। एक खाली दिल दुरूद को ऊपर नहीं उठा सकता। कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए या सिर्फ रिवायत निभाने के लिए दुरूद पढ़ लेते हैं। ऐसा दुरूद फरिश्तों के हाथ नहीं लगता, वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें नूर के बजाय नीयत की बदबू होती है। हदीस में है, अल्लाह खालिस अमल कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए हो। ऐसा दुरूद ऊपर की तरफ जाता तो है, मगर नूर ना होने की वजह से वापस जमीन पर गिर जाता है। गफलत दुरूद की सबसे बड़ी दुश्मन है। कई लोग मोबाइल पर नजर रखते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए सिर्फ जबान हिला देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन दिल कहीं नहीं होता। ऐसा दुरूद जमीन के दरवाजे तक ही रहता है, आसमान उसे कबूल नहीं करता। यहां तक के फरिश्ते कहते हैं, ये दुरूद गफलत का है, हम उसे ऊपर नहीं ले जा सकते। ये दुरूद कबूलियत के दरवाजे देखने से पहले ही वापस लौटा दिया जाता है। एक खौफनाक बात, अगर इंसान गुनाह छोड़ने का इरादा भी ना करे, अपने जुल्म पर कायम रहे, लेकिन फिर भी दुरूद पढ़े, तो ऐसा दुरूद अर्श तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, मुसलसल गुनाह और मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा दुरूद पहले ही मरहले में रोक लिया जाता है और कहा जाता है, जब तक दिल साफ न हो यह दुरूद ऊपर नहीं जाएगा। यह एक नाजुक बात है। एक आम इंसान कभी कभी थका हुआ होता है, दिल टूटा होता है,
वो पढ़ तो लेता है दुरूद, मगर कैफियत नहीं बनती। ऐसा दुरूद रोका नहीं जाता, वापस नहीं लौटाया जाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह नीयत देखता है, नतीजा नहीं। ऐसा दुरूद फरिश्ते उठा लेते हैं और कहते हैं, ये थके हुए दिल का दुरूद है, उसे भी ले चलो, ये भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, वो दुरूद जो दर्द से पढ़ा जाए, जो आह से निकले, जो सोच से उठे, जिसमें आजिज़ी हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें याद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत हो। ऐसा दुरूद फरिश्ते हाथ लगाने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, ये दुरूद हमसे ऊपर का मामला है, ये जमीन से नहीं बंदे के दिल से निकला है, उसे सीधा ले जाओ। ये वो दुरूद है जो कभी वापस नहीं लौटता, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। ये सीधा अर्श की बुलंद तरीन रोशनी तक जाता है। एक रिवायत में आता है, बाज़ोकात फरिश्ते दुरूद लेकर जाते हैं, लेकिन अर्श के दरवाजे पर उन्हें रोक दिया जाता है। एक नूरानी सदा कहती है, इस दुरूद में वो सोज नहीं जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लायक था, उसे वापस कर दो। और दुरूद नरमी के साथ जमीन पर लौटा दिया जाता है। ये मंजर देखने वाले फरिश्ते खामोश हो जाते हैं और आंखें झुका लेते हैं। ये वो दुरूद हैं जो हक न बन सके। अब सुनो दुरूद हक का मकाम। जब दुरूद हक अर्श तक पहुंचता है, अर्श के नूर में एक हल्की सी लर्जिश होती है, फिर आवाज आती है, ये आशिक के दिल से निकला है, उसे ले जाओ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करो। ये वो दुरूद है जो अर्श को हिला देता है, फरिश्तों को रुकवा देता है, अर्श के दरवाजों को खुलवा देता है। ऐसा दुरूद कभी वापस नहीं आता, बल्कि नूर बनकर बंदे के दिल में उतर जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुरूद अर्श तक जाए, कबूल हो, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए, तो एक राज याद रखो। दुरूद पढ़ते वक्त दिल भी पढ़ रहा हो, तभी दुरूद हक बनता है। और जब दुरूद हक बन जाए तो यकीन करो, फरिश्ते भी उसके एहतराम में रुक जाते हैं। हमने देखा दुरूद हक कैसे अर्श तक जाता है, फरिश्तों को रुकवाता है, नूरानी दरवाजे खुलवाता है और महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होता है। लेकिन उसका आखिरी असर क्या होता है? जमीन पर कैसा बदलाव आता है? दिल के अंदर क्या तब्दीली होती है? जिंदगी में कौन सा इनकलाब आता है? किस्मत पर क्या लिख दिया जाता है? आओ आज पिस्त का सबसे गहरा हिस्सा सुनते हैं, वो हिस्सा जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे। इंसान बोझ लेकर जीता है, गुनाहों का बोझ, गलतियों का बोझ, माजी का बोझ, और ये बोझ दिल में कांटे की तरह चुभता रहता है। लेकिन दुरूद हक का पहला जमीनी मोजजा यह है कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये हदीस का खुलासा है। दुरूद पढ़ने वाले के गुनाह बारिश की तरह धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुरूद हक बंदे के दिल से निकलकर अर्श तक जाता है और नूर बनकर वापस आता है, और ये नूर दिल के अंधेरे को तोड़ देता है। कुछ लोग पूछते हैं, दिल की कैफियत कैसे बदलती है? क्या दुरूद दिल को शिफा देता है? हां, दुरूद हक दिल की धड़कन को बदल देता है। सूफिया फरमाते हैं, जिस दिल में दुरूद की सदा हो, उस दिल को बीमारी छू भी नहीं सकती। ये साइंसी नहीं, ये रूहानी हकीकत है। दिल के अंदर नूर की एक हल्की सी लहर दौड़ती है, जो बंदे को गम से निकालकर सुकून की तरफ ले जाती है। जो दुआ बरसों से रुकी हुई होती है, दुरूद हक उस दुआ का रास्ता खोल देता है। हदीस में है, दुआ दुरूद के बगैर आसमान पर नहीं जाती।
दुरूद हक सबसे मजबूत दरवाजा है जो दुआ को ऊपर जाने देता है। यानी अगर दुरूद हक फातिहा हो तो दुआ उसके पीछे चली जाती है। यही वजह है कि औलिया कहते हैं दुआ और दुरूद एक ही दरवाजे की दो चाबियां हैं। यह हिस्सा दिल हिला देने वाला है। बुजुर्ग फरमाते हैं दुरूद हक तकदीर को बदल देता है, क्योंकि यह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। अब सोचो, एक दुरूद जो खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर पेश हो, क्या वो दुरूद कबूलियत का फैसला नहीं बदल सकता? वो कैसे नहीं बदल सकता जब वो नूर बनकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत में से एक बंदे का दुरूद है। यही दुरूद इंसान की तकदीर में नरमी लिख देता है। एक अजीब हकीकत, दुरूद हक सिर्फ नूर पैदा नहीं करता, यह दिल में खुशबू भी छोड़ता है। एक खुशबू जिसे कोई नहीं सूंघ सकता सिवाय उस बंदे के जिसके दिल में वो नूर उतरा हो। यह खुशबू दिल से दिल तक जाती है, दुआओं को चमकाती है, दिल के अंदर सुकूत पैदा करती है। औलिया कहते हैं दुरूद हक दिल को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के काबिल बना देता है। ये मोहब्बत ही इंसान की असल शिफा है। जब दुरूद दिल से निकले और सीधा अर्श तक पहुंच जाए तो वो दिल खाली दिल नहीं रहता, वो दिल जिंदा हो जाता है, सोज के साथ, नूर के साथ, मोहब्बत के साथ। और एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान महसूस करता है अल्लाह मेरे करीब है, मैं अकेला नहीं। ये सब दुरूद हक के असरात हैं। जब दुरूद हक बंदे के दिल में उतरता है तो उसके बाद जिंदगी बदलने लगती है। गुनाह छोड़ना आसान हो जाता है, दिल में नेकी की चाह पैदा हो जाती है, रात की तन्हाई बदल जाती है, बंदा अल्लाह के करीब महसूस करता है, दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और सबसे बढ़कर इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है। यही वो लम्हा है जब किस्मत बदल जाती है और यही दुरूद हक का सबसे बड़ा राज है। अगर आज तुमने सिर्फ एक बार भी सच्चाई से, आजिज़ी से, मोहब्बत से, दर्द से दुरूद पढ़ लिया और दिल में कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम, तो सुनो, बहुत मुमकिन है आज वो फरिश्ते जिनकी परवाज कभी नहीं रुकती तुम्हारे दुरूद की वजह से रुक गए हों। आज तुम्हारा दुरूद अर्श के सबसे रोशन हिस्से तक पहुंच गया हो। आज तुम्हारे दिल में जो रोशनी उतरी है वही तुम्हारी तकदीर बदल दे। ये है दुरूद हक का कमाल। अगर तुम महसूस करते हो कि आज की किस्त ने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया है तो नीचे सिर्फ ये लिख दो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम। और देखो, शायद यही दुरूद तुम्हारी किस्मत लिख रहा हो।